हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें। I'm just allowing everybody inside. या और जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम इमरान बामानी है और मेरा ताल्लुक आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान से है। आई बी योर होस्ट टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वील क्विकली स्टार्ट बिकॉज वी हैव अबाउट 60 मिनट्स फॉर दिस सेशन। और आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग है। एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी द टाइटल, इट्स कॉल्ड करियर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो हमने आज तक कहीं भी नहीं किया और एक मार्केटिंग की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे डाइव इन करूं, आई जस्ट क्विकली टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव तकरीबन कोविड के दिनों में स्टार्ट हुआ था, अबाउट 5 years बैक। इट वाज बीइंग ब्रॉडकास्टेड लाइव फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उसका असल मकसद जो है, हमारे कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर फैसिलिटेशन है। And what we try to do is that we invite top guests, top experts from that particular field to guide you through the process and the pathway to the particular career जो हमने चूज किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, एंड देन वी took it out in back in 2022. We've had already about 20 sessions. If you see our YouTube channel, which is called Career Substack, उसमें हमारे पास तकरीबन मोर देन 40 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, जिससे हम जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और यू ऑल यू हैव टू डू इज टाइप यूट्यूब career substack. I just put that into the chat window as well, so that you can ask yourself, you can subscribe yourself, and also uh, ask your friends to subscribe. So let's start today's topic. You know that we already have a chat window open. इसके अलावा we have muted everybody and nobody can turn on their videos. की वजह ये है that will have a conversation style podcast talking to our expert today. आपके जो भी सवालात हैं, you can put that into the chat window, and we will also try to answer it as soon as possible. And we have a very good lineup of questions already. Quickly moving on to the topic. Before that, I'd like to introduce our esteemed speaker today, whose name is Zaban Sayed. Zaban, welcome to the show. थैंक यू इमरान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। You're most welcome. So, Zaban has a rich experience of about 20 years in the field of advertising and brand communications. He has worked at senior roles at some of the leading agencies such as Ogilvy, JWT, Synergy, and Interflow. And these are all top names. These are very few names, and he has also managed some of the largest accounts, advertising accounts in the country. He has also repeatedly been a member of the prestigious Effie Awards jury for Pakistan, and is now running a boutique startup agency by the name of Advo. And he continues to mentor young talent at various levels. Zaban's specialization is in brand strategies, digital advertising, and product launches across multiple industries. So, welcome, Zaban. Thank you for joining us. You're And welcome। so I will quickly dive into our first questions, and we have
many questions for you. In terms of the I hope I strategy. can answer most of them. Inshallah, inshallah, inshallah. So let's start with the easiest one. What about your journey? Can you tell us about your journey in advertising and brand management and what Yeah, led sure. you to this field? Okay, you can hear me loud and clear, right? Yes, we can hear you much Okay. better. Thank So, you. yeah, so as you were kind enough to introduce me, I have around 21 years of overall work experience. My advertising journey was very unplanned. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. I went to IBA for university, and after that, when I came to the job market in 2003, तो उस वक्त there was like every IBA grad, वो ख्वाहिश थी कि यूनिलीवर, PNG, Reckitt, Nestle, इन कंपनीज में ही जाना है. Advertising was not even an industry at that time. And what was the practice कि अगर कहीं जॉब नहीं मिल रही, किसी को इंटरव्यू कॉल आई हुई है लेकिन वेट कर रहा है, तो लोग कहते थे किसी एड एजेंसी चले जाओ, कम से कम फारिग नहीं बैठोगे, जैसे कोई आती है ऑफर, just go, just leave. So it was a launching pad for people. It was not an industry. It was not a career at all. मैं भी इसी तरह I went to first Standard Chartered. That was my first gig. आप कह सकते हैं 2023. And मैं भी समझ रहा था कि I'll become a banker. I was with the phone banking division, and I was supervisor for the complaint resolution unit. वो एक बड़ा ही different world था. But somehow I did not really enjoy it much. Luckily, मुझे एक offer आ गई, और after 8, 9, 10 months of that job from a previous company where I had interned, that was Gillette Pakistan. और Gillette पाकिस्तान को उस वक्त तक PNG ने नहीं खरीदा था, तो Gillette was a worldwide multinational. So I went there. That was a completely different world. वो बहुत ज़्यादा number crunching थी, बहुत ज़्यादा supervision थी, because I was in the value chain division. जो अब supply chain सब कहते हैं, value chain is a extended concept of that. और Gillette was the pioneer globally value chain concept में. So it was that way a very safe role. मुझे वो लोग दुबई के लिए भी consider कर रहे थे, and yet it was not what I wanted. तो आज शुरू में बंदा हाथ पांव मारता है, एक्सप्लोर करता है, अपनी ऑप्शंस देखता है. You want your comfort zone. वहीं पे मेरे एक सीनियर था, Hasnain. He became a very good friend of mine, a mentor at Gillette, and he was like a marketing guy. And he said, यार तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपने आप को यहाँ पे वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल्स प्लानिंग करने में, तुम एडवर्टाइजिंग के बंदे हो. मैंने कहा एडवर्टाइजिंग, बिकॉज अगेन फॉर मी इवन इट वाज लाइक अच्छा एडवर्टाइजिंग में भी कोई करियर होता है. So he said, I know this guy who's heading an ad agency. Why don't you go and meet him? And he connected me with Asim Naqvi. Now he's Ogilvy CEO for the longest time. He's a top of the line ad man, I think, Pakistan mein, and he's been my mentor in advertising. So I met उस वक्त वो Ogilvy में नहीं थे, Asim. So that was Avenue Concepts, Karachi. I'm a Karachiite basically. Now I'm in Lahore. Anyway, so Avenue was my first thing. और वहां पे भी जब मैं गया, तो मुझे तो आसिम ने कहा कि यार तुम्हारी पिछली दोनों जॉब्स मेरे लिए यूजलेस हैं. ना जिलेट इज रेलिवेंट हियर, ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज रेलिवेंट हियर. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. इट वाज अ ह्यूज रिस्क. कम तनख्वाह पे मैं वापस आया ऑन अ थर्ड जॉब, बट आई थिंक यू हैव टू टेक रिस्क इन योर लाइफ. अगर आप नहीं लेंगे वो रिस्क, तो बाद में यू डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट. अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क फॉर मी, बिकॉज IBA और इस तरह की प्रोफाइल के लोग वैसे ही कम थे इस इंडस्ट्री में. सो मेरे ख्याल से आई जॉइंड इट एट द राइट टाइम. आई ऑल्सो देन ऑब्वियसली stuck around because I enjoyed it. It would really matched what I wanted to do. And we will talk more about it आगे जाके. लेकिन बस then there was no coming back. मुझे ब्रांड मैनेजर की भी बीच में ऑप्शंस आई, but I prefer to be an account manager, and that's how I grew. I had good growth. In 4 years में Avenue Concepts में account executive से I became the director client service. Then I went to Interflow. वहाँ पे I was lucky enough to head Ufone, जो Interflow का largest account था. और ये वो जमाना था जब बात बन जाए Ufone पब्लिक डिमांड, बड़ी सेक्स अपील किस्म की इनकी एडवर्टाइजिंग थी. कंफ्यूज थी ये लोग. शुरू हुए थे फ्रॉम ह्यूमर, बकरा मंडी वाली कैंपेन थी, सलमा सलमा, सबको याद होगा शायद, वो एड बचपन में हमने देखा था. एंड फिर वो आ गए थे एक सेक्स अपील पे. सो व्हेन आई जॉइंड, दिस वाज द एरा, एंड मेरे सामने वापस दे ट्रांजिशन टू द ह्यूमर एंड दे शेल्फ दैट डायरेक्शन. तो वो एक इंटरेस्टिंग 1 year की ट्रांजिशन थी. केम बैक टू एवेन्यू फॉर अ ईयर. आफ्टर दैट आई वेंट टू JWT.
वहाँ पे I worked on some good clients. There was Shan, there was HSBC amongst others. उनको मैंने manage किया 1.5-2 साल. Then after that for like a year, 2012 में I looked after an activation agency on ground. उनका Unilever was the main client, so that was a very different exposure. और उस वक्त तक कोविड नहीं हुआ था, तो ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस बहुत हैवी होती थी, फ्रॉम टाउन स्टॉर्मिंग्स टू मॉल एक्टिवेशंस टू फ्लोट एक्टिवेशंस. हर एक को याद होगा, रोडों पे फिर रहे होते थे डब्बे. एंड देन आउट ऑफ द ब्लू, यही आसिम नकवी जो मेरे फर्स्ट बॉस एडवर्टाइजिंग थे, ही हैड जॉइंड Ogilvy, एंड इन 2012 के एंड पे ही called me. He said, "What are you doing? Come to Lahore." He made me a good offer. Also, the fact that I was coming back to mainstream agency and the top agency, and unka bhi biggest client tha Nestle, their biggest retailer account, which was kind of the bread and butter for Ogilvy. And yet मेरे लिए इसमें चैलेंज ये था कि वो क्लाइंट उनके लिए रेड फ्लैग हो गया था. वो बहुत ज्यादा मसले चल रहे थे, और वो इट वाज लुकिंग लाइक इट्स 6 months, 1 year एंड दे विल लीव. सो जब मैं गया तो इट वाज अ हाई रिस्क मूव, लेकिन इट पेड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह. 6.5 साल फिर मैं ओगिलवी ही था, एंड आई लुक्ड आफ्टर नेस्ले बिजनेस. वो 11 लोगों की टीम से 49 लोगों की टीम तक पहुंच गई थी बाय द एंड ऑफ द 6th year. So they had unprecedented growth, not only in terms of the advertising team, but also business. Zahir hai, business is directly linked to your partners. उसके बाद आई लेफ्ट ओगिलवी. लगता था कि अब इसके बाद 6.5 साल इन एजेंसी वेयर आई कंप्लीटली जेल्ड इन. वाज थोड़ा सा मेरे लिए जरूर स्ट्रेस का एक महीना था, लेकिन गॉड ऑलवेज हैज प्लान्स. सो an agency I had never considered. मेरी consideration set में नहीं थी Synergy Dentsu, but Synergy से मुझे offer आ गई. They were looking for head of Lahore office, RD, resident director for Lahore. And June 2019 I finished Ogilvy. July 1st मेरी वहाँ joining हो गई. So, and then 2.5 years I was heading Synergy in Lahore. We did some good work. We were looking after Hire, amongst other things. We were looking after Hyundai. ये सारी आपकी Elantra, Sonata, Tucson, ये सारी मैंने spearhead किए launches advertising के point of view से. And then after that, थोड़ा सा मैं फिर after 2.5 years and almost 16 years into advertising, I decided to go for the startup model. उस वक्त startup culture शुरू भी हो गया था. हमेशा से स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट तो था, हमें पता था स्टार्टअप्स यही होते हैं, लेकिन उसको टर्म नहीं मिली थी. इट वाज नॉट ब्रांडेड एज अ स्टार्टअप. So a friend of mine, ex-IBA grad, ex-Unilever, so he was running an agency in Karachi, startup agency. He had no setup in Lahore, so I joined him for a year. I was managing director for Lahore. After that, I launched in partnership with another guy my own startup. That was 2022 ka end. It was called Ether. It was in partnership with a large real estate giant of Punjab. However, for multiple reasons, because उनका अपना core business नहीं था, and there were various challenges. So around 1.5 साल वो agency चली. We pitched a lot. We won good business, but the costs and operating costs were very high. And ये एक challenge है जो हम challenges में discuss करेंगे. And उसके बाद से 2024 starting, I launched my own startup. That was by the name of Advolution. That is still working. And 2025 Jan, I have launched Advo, but this is a partnership with 4 other senior people, not only Pakistan based, but throughout the world. So US maybe we have a partner. He's an award-winning designer. There's a partner in UK. So this time around, we want to also explore the global footprint, global clients, because that is a huge segment, which is at this time अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान रीप करना शुरू हुआ है. कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स, हमारी एक्सपोर्ट्स अब पॉजिटिव में है एवरी मंथ, इंक्लूड स्पेशली टैक्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें ग्रो हो रही हैं मंथ ऑन मंथ एंड मंथ. ऑलमोस्ट 2 years हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रजेक्टरी एंड आवर विजन इज राइट. So yeah, Excellent, excellent. That was a this is a great introduction, Ziban. I think what I can gather is that, of course, it matters when you graduate from, top university. जिस तरह से आपने IBA से पढ़ा, माशाल्लाह, and that was about 20 years back, and then you grew industry, and it seems like you probably were following that advertising space, but after a little time, it started following you. So it kind of, built it in your it has to be a DNA. marriage. It goes both ways.
जबरदस्ती नहीं हो सकती ये चीज. So a lot Absolutely. of So you people, think my you had friends, the उन्होंने छोड़ दिया एडवर्टाइजिंग बिकॉज उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल जॉब थी. इट इज अ हाई स्ट्रेस yeah. field. It is a high stress job, But and if as you it said that matches you and your personality, then there's nothing like it. Then you wouldn't enjoy yes, yes, that and it's other monotonous jobs. correct. It's all about having the clientele and then the clientele retaining you and you retaining the clientele. And if an agency, small agency, even has a one large client, तो बहुत काफी होता है in terms of revenue. But of course उसमें भी आपको sales pitches सब करनी पड़ती है. Advertising कंपनी में होना या खुद भी एडवर्टाइजिंग कंपनी ओन करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास अकाउंट्स गिरने लगेंगे या क्लाइंट्स खुद आने लगेंगे. एज ऐसे यू ही है. मेंशन दैट देयर पिचिंग तो, टाइम इन अ डजन. पिचिंग इज अ कांस्टेंट या वो. और इसमें भी आपको पता है, अगर तो एक ही क्लाइंट हो बड़ा, बेशक वो आपकी पूरी कंपनी आपका ऑफिस फाइनेंस कर रहा हो, बट वो भी बड़ा रिस्की वेंचर होता है, एज यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. वरना या तो एक तो उनके पास वो हमेशा वो रहेगा, आपको वो बिल्कुल पीस देंगे. उनको पता ही है तो हमारे टुकड़ों पे हैं. ये भी एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है हमारी लोकल इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी क्लाइंट्स की जो माइंड सेट और मेंटालिटी है, एंड हाउ दे ट्रीट एजेंसीज, एंड हाउ एजेंसीज हैव बीन ट्रेडिशनली, जो उनके साथ एक क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप रहा है, गुलाम आका वाला, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है. बाहर तो ऐसा राइट. नहीं है, लेकिन ये डायनामिक्स हैं हमारी लोकल मार्केट के, एंड वी हैव टू करेक्ट. एक्सेप्ट सो इट. yeah, because of course our our topic is the career path type. तो हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे कि स्टूडेंट्स के हवाले से कि आप अगर ये बताएं कि व्हाट करंटली, जिस तरह से आपने भी मार्क आईबीए पढ़ा है, सो व्हाट यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज और सर्टिफिकेशन वुड यू रेकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इस करियर पाथ को लेना चाहते हैं बाय चॉइस? तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है फॉर एंटरिंग दिस फील्ड? अच्छा, उसमें देखें, बेसिक एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन बिकॉज अदर देन मीडिया, जो हमारी क्रिएटिव साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज नॉट हाईली टेक्निकल, बट इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस. तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टैनफोर्ड और बहुत टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज आर नॉट नेसेसरी. हाउएवर, मोर देन, ठीक है, अंडरग्रेड तो चाहिए ही चाहिए ना. बट व्हाट आई हैव सीन, आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज in the last few years, 10 years, I would say. एंड एक चीज जो मुझे रियलाइज हुई कि मेरे सामने एलएससी का भी बच्चा आके बैठा हुआ होता था, जो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी बच्चा आके बैठा हुआ होता था एट टाइम्स, एंड तकरीबन सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते थे. सो ये भी जो एक अगर तो ये आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, आपको कोई बहुत टेक्निकल चीज में जाना है, तो देन स्पेशलाइज्ड degree is a must, and going to a specialized university is a must. However, for advertising and marketing, I think after graduation, more than anything else, sensibility is very important. क्योंकि एक तो चीज है जो आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ. अपनी अपना माइंडसेट, हाउ यू थिंक, हाउ यू एनालाइज थिंग्स, डिसाइफर सिचुएशंस, आपकी अपनी टेम्परामेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर एक साइंस जरूर मौजूद है, तो अब ये डिप्लोमास बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन डिग्रीज बहुत हो रही हैं, इवन मेटा एंड गूगल अपनी सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा ये चीज अवेलेबल है. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट फॉर न्यू कमर्स, एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द डिजिटल साइड ऑफ इट, ये डिजिटल सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं. एंड देन ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अब एआई जितना इम्पोर्टेंट एकदम से हो गया है, जितना एक एआई रेवोल्यूशन आ गई है, एआई ने एक साल में, जो फर्स्ट ईयर इज ओवर एंड इट हैज कंप्लीटली चेंज थिंग्स, और लोग कह रहे हैं अगले एक साल में और एक साल बाद पता नहीं एआई कहाँ पहुंच जाएगी. तो बहुत, तो मेरे लिए अब एआई टूल्स की नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट, नॉट टू डिस्करेज हायर एजुकेशन, लेकिन आई फोरसी कि अगले साल 2 साल बाद बच्चे शायद ए लेवल्स के बाद घर से बैठ के, बिकॉज दे नो एआई एंड दे नो ऑनलाइन टूल्स, तो वो चीजें कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आई नो ऑफ सच किड्स, लेकिन वो चीजें कर रहे होंगे एंड वो शायद ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे पर मंथ या पर ईयर, वर्सेस एक बच्चा जो शायद एमफिल करके पीएचडी करके आया है और वो एक जॉब ढूंढ रहा है और उस तरह फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है. सो इसलिए ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. लम्स करवा रहा है तो बहुत ज्यादा चीजें, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा का रोल, लेकिन वो अगेन दैट इज अ टेक्निकल साइड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. डेटा से सारी चीज शुरू होती है. जो बड़ी कंपनीज हैं
Nestle हो गई, यूनिलीवर, दे इन्वेस्ट hundreds of millions of rupees in researches every year. ये जो रिसर्च एजेंसीज इतनी बड़ी खुली में। So when you say data, this means कि how this advertisement, particular advertisement has worked, how many masses it has reached, what is the डेटा जब मैं difference it कह has रहा made. हूँ इमरान, तो डेटा मीन्स अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। आप जिसकी बात कर रहे हो वो है रिपोर्टिंग, या वो है एनालिसिस ऑफ अ कैंपेन और ऑफ एन एड। वो बहुत Hmm. बात की बात है, मैं एड से पहले का बात कर रहा हूँ कि Okay. वहां पे So what डेटा is it बहुत about? What इंपॉर्टेंट है। is it मैं about? आपको बताता हूँ। Hmm. सो डेटा इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसको सिंपल डेटा भी होता है, हर चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास पे चाहिए, अभी फॉर एग्जांपल द अदर डे आई वाज पिचिंग फूड बिजनेस, तो व्हाट आवर यूजुअल प्रैक्टिस इज कि हम एक अपने एंड पे, अब तो ऑनलाइन हर चीज यू कैन डू, सो ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाते हैं। क्या जो उसका कंज्यूमर है, जो उसका पोटेंशियल कंज्यूमर है, या जो इसका, जो हमें ब्रीफ दिया क्लाइंट ने, वो जो उनका टारगेट ऑडियंस है, उसको उसको उससे अब हमें रिस्पॉन्सेज लेने हैं। अगर जेंजी है तो हम हमारे अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ सर्कल में 50-100 लोगों को हम रीच कर सकते हैं। तो हम एक टेलर्ड क्वेश्चनर बनाते हैं, उसको ऑनलाइन फ्लोट करते हैं, उससे हमें रिस्पॉन्सेज आना शुरू होती हैं। सो बिफोर द पिच, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि हम उन रिस्पॉन्सेज को लेते हैं एंड सिंपल उसका एक एनालिसिस करते हैं कि This is the ओके, customer research part. ये कस्टमर रिसर्च पार्ट क्या, व्हाट आर योर टॉप 5 रेस्टोरेंट्स पे, व्हाट आर योर टॉप 5 रिक्वायरमेंट्स इन द रेस्टोरेंट, इट कैन गो एज डीप एज यू वांट। वो जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। उसके अंदर से मिसिंग नीड भी मिल जाती है। वो मिसिंग नीड एक्चुअली आपकी इनसाइट है कि व्हाट इज मिसिंग इन द कंज्यूमर्स लाइफ। अगर वो डेटा नहीं है तो आप ये कभी एनालाइज ही नहीं कर सकेंगे कि असल मसला क्या है। फिर क्या होगा, क्लाइंट कहेगा यार डिजाइन दे दो, यार डिजाइन पसंद नहीं आया, दो और डिजाइन दे दो। बिकॉज वो, आप Hmm. उसको बेच ही नहीं सकते, आप उसको डिफेंड ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने कोई एक डिजाइन भी बनाया, एक की विजुअल बनाया है, लेकिन वो बेस्ड ऑन डेटा है, बेस्ड ऑन इंसाइट है, आई विल फाइट फॉर इट, आई कैन सेल इट। सो दिस Hmm. इज Hmm. वाई द Hmm. इंटायर प्रोसेस गोज हे वायर। Hmm. या इंटायर प्रोसेस ही मेरे हिसाब से जायल हो जाता है अगर हम रिसर्च और इंसाइट का प्रोसेस स्किप कर दें। Yeah. हुआ है, बहुत दफा होता है, नॉर्मल छोटी, हर एजेंसी का प्रोसेस नहीं है, लेकिन बिकॉज माई एक्सपोजर हैज बिन विद टॉप एजेंसीज एंड ग्लोबल एजेंसीज एंड ग्लोबल क्लाइंट्स, तो आई अंडरस्टैंड द राइट प्रोसेस एंड आई हैव सीन द डिफरेंस इट मेक्स, कि आप प्रोसेस फॉलो करें या ना करें और एंड में रिजल्ट क्या आता है। अच्छा मैं तो इसकी एक एग्जांपल Zaman, ये अगर दूं this is कि sorry to interrupt you. हाँ सर Sorry बताएं। to interrupt you. This is so I think what I'm just going to take a step back because I'm sure you know all the students are also curious. तो एक तो आपने कहा कि ठीक है degree is important but not that important because the top agencies in Pakistan or worldwide before they hire you ये तो जरूर देखेंगे कि आपकी डिग्री मार्केटिंग में है या नहीं है, बट दैट्स जस्ट एन एंट्री पॉइंट। उसके बाद आपने बताया कि ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशंस अगर आप करते रहें तो वो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं और कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब आप मुझे बताइए कि कमिंग एंड ए बैक आई, टू योर एंड ए आई मैं कह and रहा था कि yeah, ए AI, आई so बहुत AI, you इंपॉर्टेंट। said that it's important because of course it's coming in a big way, but people are using it in on the creative side more, or is it? And tell me in advertising, अब हम बात करते हैं itself the field की कितनी उसकी सब डिविजन्स हैं या कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने कस्टमर रिसर्च का बताया, एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट होगा, और कौन से एरियाज है मैं एडवर्टाइजिंग समझाता के? हूँ द स्टेप्स, इफ क्या? आई मे। सो द फर्स्ट इज ऑब्वियसली रिसर्च एंड साइट्स, हमने डिस्कस कर लिया व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। उसके बाद दैट विल लीड टू द सेकंड स्टेप। हम तो यूजुअली लैडर डाउन करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय समझें, फिर उसके बाद है स्ट्रैटेजी। डेटा की बेसिस पे देन वी विल सी व्हाट व्हाट डायरेक्शन कैन बी टेकन। उसके पीछे इनसाइट्स को माइन भी किया जाता है, जिसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं, ज़ाहिर है। और फॉर वेरियस, या विद वेरियस टूल्स, विद वेरियस different angles, we will see के this is the right direction, this is not the right direction, this is a good to have, this is a no go area, whatever local nuances हैं। Example देता हूँ, अभी recently we were talking to a local farmer, they have a product which is the same formula as Viagra now, that's a Pfizer product, a multi-billion dollar product। ये अब आए हैं इसमें, and I think it's ये कोई patented उसका वो ingredient नहीं है। Everybody knows Viagra because वो 20 साल से एग्जिस्ट करती है।
सो नाउ ये लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन इनको ये था कि हम ये भी नहीं दिखा सकते, मैं कल्चरली बहुत ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है, वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सारी न्यूआंसेस हैं एंड ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बेसिस पे ही फिर हम कोई वी विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी एक लाइन की भी हो सकती है, वो स्ट्रैटेजी ब्रांड रिवैम्प स्ट्रैटेजी भी हो सकती है 50 स्लाइड्स की, बट द राइट स्टेप इज रिसर्च विल लीड टू द स्ट्रैटेजी एंड बाय द एंड ऑफ द स्ट्रैटेजी वी अराइव एट अ बिग आइडिया, जिसको हम बिग आइडियल भी कहते हैं, लेकिन अ बिग आइडिया फॉर that task. It can be a brand campaign, it can be a new packaging launch, it can be a new message. लेकिन ideally strategy will lead to a big idea and big idea के बाद शुरू होता है creative process, जिसके अंदर पे creative direction 1 फॉर एग्जांपल दी हमने, एक उसकी एक और ऑप्शन दे दी कि अच्छा इस तरह नहीं तो हम इस तरह कर सकते हैं, ऑप्शन 3 दे दी। सो रिसर्च इनसाइट्स, स्ट्रैटेजी, क्रिएटिव आइडिएशन या डायरेक्शंस, एंड उसके बाद फिर उनकी डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन जिसको कहते हैं, या डिग्रीज तो कम्युनिकेशन डिजाइन में होती हैं, बट वी जस्ट कॉल इट डिजाइन। तो डिजाइन, और डिजाइन में भी उसके पहले की विजुअल्स डेवलप होते हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट विजुअल कहते हैं। वंस वन ऑफ देम या अ फ्यू ऑफ देम आर लॉक्ड विद द क्लाइंट, फिर उसको एक्सपैंड करते हैं, तो उसकी कैस्केडिंग होती है जिसको हम कहेंगे POSM सब कहते हैं इज अ टर्म। या आउटडोर्स आप होर्डिंग्स देखते हैं, इन स्टोर ब्रांडिंग्स देखते हैं, or anything. It can be 100 different deliverables. एंड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ प्रोसेस, ये एक तो डिजाइन हुई, देन मीडिया लगी, हो सकता है वो चीज डिजिटल पे एड के फॉर्म में जा रही हो, वो किसी होर्डिंग के ऊपर एज स्कैन लग रही हो, वो किसी के पास अखबार में डायरेक्ट मेलर जा रहा हो, या अखबार में सिंपली ऐड जा रहा हो, तो ये डिफरेंट टच पॉइंट्स हैं कंज्यूमर के लिए। सो दिस So the इज द media प्रोसेस। और vehicles. इसको भी आप आगे फिर और एक्सटेंड करें, आप पीआर भी अब आ गई है, एवरी अदर क्लाइंट वांट्स पीआर। पीआर में दो किस्म की चीजें हैं, देयर इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वी ऑल नो व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज। there's a second leg which is macro blogs and publications. तो फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट था खोज रिजॉर्ट, इट्स अ हाई एंड रिजॉर्ट इन स्कर्दू, owned by Silicon Valley businessman, Pakistani businessman Usman Rashid। तो उन लोगों का भी इसी तरह का, सॉरी मैं जस्ट स्किप माय माइंड कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें। We're just talking about basically the how has the industry evolved? What are the steps happens in the advertising agencies? कौन से departments के लिए कौन सी skills required? Like customer या research है तो you could be a customer जी जी, research हम स्टेप्स की specialist. बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक Yeah. पॉइंट आया था जिससे मुझे खोज की बात आई थी, बट एनीवेज सो ये हमें क्लियर हो गया। हाँ, आई थिंक इट वाज पीआर। तो खैर पीआर में मैक्रो ब्लॉग्स उनको लिखवाने थे हमें। एक तो तरीका होता है कि इन्फ्लुएंसर्स इंडोर्स करते हैं, जी हम गए थे खोज रिजॉर्ट, इट वाज रियली नाइस, स्टोरीज लगा देते हैं, पोस्ट लगा देते हैं पेड, तो वो तो हम सबको पता है, दैट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन देन देयर इज अनदर वे कि किसी की अननोन बंदे के नाम से एक आर्टिकल आ गया, now that's a publication but that's also part of PR, digital PR। Hmm. तो Hmm. वो अब ये आपका पर्लो है, मैंगो बाज है, एंड देन सो मेनी ब्रांड सिनारियो है, अब तो देयर सो मेनी ऑनलाइन पब्लिकेशंस, इवन डॉन, इन सबके ऑनलाइन पब्लिकेशंस ही मौजूद हैं। तो अब इनफैक्ट ATL BTL जो कहते थे, तो ATL से बहुत ज्यादा बजट अब डिजिटल की तरफ आ गया है। तो अब एक वक्त होता था क्लाइंट कहता था मुझे डॉन में फिजिकल में ऐड चाहिए, अब वो कहते हैं कि डॉन पब्लिकेशन पे ऐड हमारा करवा दें। सो Hmm. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग and publications make PR. So PR is also very important leg. So So that brings me to my next question, जिसमें I think you've already touched upon and you can elaborate more on how has this industry evolved? जिस तरह से आपने बात की एकदम से physical to digital, I think it's been a more than a 10-year process. So can you take us through that evolution? I think इमरान, सबसे ज्यादा चेंज आया है रेडिकल, और जो एक्सेलरेट हुआ है चेंज वो हुआ कोविड स्टार्ट। कोविड जब से आया, Hmm. क्योंकि कोविड से पहले के मुझे फिगर्स याद हैं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2018-19 तक डिजिटल मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री ग्लोबली 20-30 बिलियन डॉलर, 30-40 बिलियन डॉलर की होगी, $50 billion की होगी, बट एज ऑफ 2023 इट इज एस्टिमेटेड टू बी 350 to 400 बिलियन डॉलर। सो ये 10 times, 8 times टाइप का जंप इन 3 years 4 years, इट्स अनरियलिस्टिक। लेकिन कोविड में
क्योंकि ये, और आपको याद होगा कोविड में लॉट ऑफ ह्यूज बिजनेसेस वेंट आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज फिजिकल ऑफ टेक खत्म हो गई, ब्रांच पे जाना खत्म हो गया, शॉप्स क्लोज हो गई, फिजिकल मोबिलिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा थे। सो इसीलिए ये जरूरी था करना। या Excellent, excellent. So, acha, now, of course, we spoke about the evolution of the industry now. Going back to, if I ask you, what are the biggest challenges which the brands or top companies who are advertising, what are the biggest challenging they face today when they want to communicate their identity to the consumer? Like, you spoke about Uphone, पहले एक humor appeal पे जा रहे थे, went to another appeal. So what is the challenges their brands are facing these days? Because इतना first channel penetration have increased so much that you've got inside digital marketing, you got tens of mobile applications like Facebook or Instagram or Threads or Reels and TikTok. What is the issue with the brands? अच्छा, क्वेश्चन बिगेस्ट चैलेंजेस का। सो आई थिंक चैलेंजेस तो देयर सो मेनी। सबसे पहले ब्रांड्स हु कैन नॉट कीप अप विद द चेंजिंग टाइम्स, दे go out of business. Those who don't have a plan B, they go out of business. Or consistency is very important. I read somewhere recently that in the last 5 years, some 300 CEOs of the top 500 companies of the world have resigned. In the last 1 month, yet 2 months, Unilever Global and Nestle Global CEOs have resigned. Now, these are huge indicators of something wrong going on. For such a long time, these brands, these companies were movers and shakers. अब वो अंदर से शेक हो रहे हैं because they are either not evolving to dynamics. अब मसला ये है कि ब्रांड अब लोगों के लिए प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया है। इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। साबुन की अब कोई लॉयल्टी नहीं रह गई। सो अनलेस द ब्रांड इज एडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर्स लाइफ, और somehow or the other इट्स लार्जर देन लाइफ, किसी तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है सोशल। ये भी कोविड की एक लर्निंग है। तो ब्रांड जिन्होंने एक सोशल एंगल दे दिया सर्वाइव कर गए, और ब्रांड जो कोल्ड थे, बिल्कुल लोगों की सफरिंग से दूर रहे, वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए। तो ये एक चैलेंज है। प्लस गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैव ऑलवेज बिन अ चैलेंज। मुझे याद है कि 2019 में, मे बी यू ऑल्सो रिमेम्बर, उस वक्त एक थे चीफ जस्टिस, और वो नेस्ले के पीछे पड़ गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, निसार समथिंग। और उन्होंने उनको, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो एक हेफ्टी बिलियंस का फाइन वाटर पे भी इशू कर दिया कि जी आप लोग 25 साल से पानी निकाल रहे हैं मुल्क को, आप लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं किया। फिर उन्होंने उनके नीडो 1 प्लस, लैक्टोग्रोज, नेस्ले बुनियाद, इन सब पे बड़ा बड़ा लिखवा दिया कि ये दूध नहीं है। these are challenges which they were not prepared for, and it extremely hurt their business. लेकिन ये भी इस तरह के challenges आ जाते हैं। So, सो आई थिंक कि लैंडस्केप जो चेंज हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिसको एक चीज पे आप नहीं कह सकते कि क्या एक चैलेंज होता है। देयर इंटरनल फैक्टर्स, देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स, देयर मार्केट फैक्टर्स। और हर बिजनेस की अपनी एक किस्म की नीश है, एक अपनी किस्म की कंपटीशन है। सो या आई होप आई so, कुड so आंसर दैट। Bharma, yeah, I think you answered that question pretty well. But उसका एक follow on question ये हो सकता है कि इतने सारे platforms अब आ गए हैं, ठीक है? तो of course the customer would always be a bit confused कि what channel, like say what digital platform, and we can also speak about how digital marketing has changed. Because again, I see advertising agencies or even top customers like the banking industries thinking कि हमें TikTok पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, will it suit our brand anymore? How do the advertising agencies and account managers or CEOs like you choose a digital channel, and how do you choose which, how much to show? You want to show a reel or you want to show a full ad on digital? How do you do it? ओके, सो एज फार एज लेंथ इज कंसर्न, फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द ऑप्टिमम लेंथ, तो वो कुछ चीजें, आई एम श्योर यू ऑल हर्ड एल्गोरिदम, द वर्ड एल्गोरिदम।
तो वो उसका मतलब ये होता है कि बैक एंड पे उस प्लेटफॉर्म ने आपकी अफिनिटी, लाइक किसी एक वीडियो को लाइक कर दिया तो वो अपने हिसाब से उन्होंने टारगेटिंग कर दी होती है आपकी। प्लेटफॉर्म यूजुअली दो हैं इस वक्त, इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज गूगल एंड देयर इज मेटा। मेटा को फर्दर ब्रेक कर देते हैं इनटू फेसबुक एंड इंस्टा। देयर इज लिंक्डइन ऑल्सो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्पस है, बट मैं मास ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ। गूगल में आपका आ जाता है यूट्यूब प्राइमरली, एंड फिर जीमेल एड्स भी होते हैं। जहां तक टिकटॉक एंड लिंक्डइन का सवाल है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं इनसे। पर्पसेस भी इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के, चारों प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट हैं। देर आर सम मास कैंपेन जो सारे ही प्लेटफॉर्म से जाते हैं, क्योंकि उनका बजट ही लॉन्च का 50 करोड़, 1 करोड़ रुपए होता है, तो ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड टू गो ऑन ऑल द चैनल्स इन एवरी प्लेटफॉर्म। लेकिन सब ब्रांड्स इस तरह नहीं करते। सो आइडियली इफ इट इज अ सेंसोरियल ब्रांड, तो इंस्टा इज प्रिफर्ड। इफ इट इज मास वर्ड ऑफ माउथ या मास रीच, तो इट्स यूजुअली फेसबुक, यूट्यूब। क्योंकि जो लोग मेटा पे हैं वहाँ का हैबिट, डिजिटल हैबिट बड़ा डिफरेंट है वर्सेस यूट्यूब। यूट्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो तैयार है वो एक वीडियो लंबी देखने के लिए। इसलिए उसको अलग एक, वो जो स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स और वो सारी चीज़ें हैं वो ये लोग करते हैं। लेकिन मेटा रिमेन्स द प्राइमरी फोकस ऑफ एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स। क्योंकि और उसमें आपने देखा होगा कि एल्गोरिथम की वजह से आप एक जूते के ऐड पे क्लिक कर लें, उसके बाद आपको बैनर्स बैनर्स आते रहेंगे, हर किस्म के जूते ब्रांड्स। तो ये दिस इज द एल्गोरिथम वर्किंग। टिकटॉक इज फॉर एक्सट्रीमली मास, वर्ड ऑफ माउथ। उससे कोई ऑफ टेक नहीं है। उससे अगर आप समझेंगे कि आपका ब्रांड आप सिर्फ टिकटॉक पे ले जाएं और आपको उससे नंबर्स आएंगे, तो नहीं आएंगे। अब वहाँ की देखें ऑडियंस भी ऐसी है, इट रिप्रेजेंट्स द मासेस, बट फ्रैंकली नॉट मेनी ब्रांड्स आर टॉकिंग और सेलिंग टू द मासेस। अब वहाँ पे कोई फार्मर है, उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ना, 5 मिलियन फॉलोअर्स का मुश्किल ही कोई पाकिस्तानी मिलेगा इंस्टा पे। इंस्टा इज अ हायर क्वालिटी, लोअर फॉलोअर प्लेटफॉर्म, लेकिन वहाँ हायर कैलिबर एंड इस तरह के आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं। और एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे शायद 5 लाख फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर जो होगा इंस्टा का, वो एक एक्स अमाउंट लेगा, और यहाँ पे शायद 10 मिलियन वाला वो अमाउंट ले रहा होगा। सो दिस जस्ट शोज यू द हम्म डायनामिक्स। शोर पुकार नाच गानों के लिए बना था टिकटॉक, अभी तक शायद 90% उसी के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हम्म बिकॉज इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो गया है, हर किसान, हरी स्ट्राटा, SEC, DE तक उसकी पेनिट्रेशन है। तो अगर आपको नॉइस क्रिएट करना है पूरे पैन पाकिस्तान, जाए टिकटॉक पे जरूर चले जाए। बट वहां से कोई ये नहीं है कि कोई क्लिक करेगा, वेबसाइट पे आएगा, बाय कर लेगा। लिंक्डइन ऑन द अदर हैंड इज वेरी डिफरेंट। इट रिमेन्स द मेन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स। तो वहाँ इट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जाहिर है वहाँ पे आप अगर अपना सही टारगेटिंग करें, तो यहाँ पे तो शायद 10 लाख लोगों को रीच कर रहा है, जिसमें एक CEO मिल जाएगा। वहाँ आप एक कैंपेन में 1000 CEOs को टारगेट कर सकते हैं। सो अगेन द क्वालिटी ऑफ द लीड्स आर वेरी डिफरेंट। लेकिन नॉट एवरी ब्रांड इज देयर। सो बहुत ही कम राइट। किस्म के ब्रांड्स आते हैं। तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के हिसाब से क्लाइंट्स की अपनी नीड्स हैं, जो जिस पे मैच करेगा। लेकिन यूजुअली मिक्स एंड मैच होता है, 5 4 प्लेटफॉर्म्स में से कम 2 प्लेटफॉर्म्स पे हम कहते हैं जाएं। But percentage wise, now digital platforms are, you would say, what, 60-70%, and या physical व्हेन आई vehicles are स्टार्टेड less. व्हेन आई स्टार्टेड था, तो डिजिटल था ही नहीं। डिजिटल 2006-7 में फर्स्ट फर्स्ट डिजिटल डिजिटल फेसबुक बैनर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। एंड 2010 तक मेरे ख्याल से वो 5% पे पहुंचा था, फिर 2015 तक शायद वो 10-15% पे पहुंचा था। बट नाउ आई वुड से बाय वेरी सेफ एस्टिमेट 50% तो कहीं नहीं गया क्या आपका एडवर्टाइजिंग स्पेंड। और इसमें भी जहन में रखें कि वो जो 50% बचा है, जो PTV और टीवीज पे चल रहा है, या तो वो टेलकोज हैं, या वो फर्टिलाइजर्स हैं, या वो बैंक्स हैं। बट द रियल Hmm. कंज्यूमर गुड्स वो सारा डिजिटल पे मूव हो चुका है। Correct. तो Correct. Yeah. या So large companies are still there because, of course, कैन आई ऐड वन Pakistan थिंग में, बिफोर आई हाँ, फॉरगेट, कैन आई ऐड वन थिंग, क्योंकि डिजिटल स्पेस की बात हो रही है। सो यस, पाकिस्तान ऑब्वियसली इज इवॉल्विंग रैपिडली, लेकिन हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे वो चीज़ इंट्रोड्यूस होने में। अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समबडी, तो अब एक वक्त था टीवी को रिप्लेस किया डिजिटल ने,
अब डिजिटल से भी आगे चीजें चली गई हैं। सो ई कॉमर्स स्टोर्स का हम सबको पता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। अब वी कॉमर्स बन रहा है, वर्चुअल ई कॉमर्स स्टोर। तो आप स्टोर के अंदर फिर रहे हैं, आप शेल्फ पे जा रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं। ये वैसी ही चीज है जैसे मेटा ने भी अपना एक मेटा यूनिवर्स शुरू कर दिया है और उधर भी प्लॉट बेचना शुरू कर दिए हैं। सो दिस इज हाउ द डिजिटल स्पेस इज इवॉल्विंग। कल को आपका भी शायद घर हो डिजिटल एक। मेटावर्स, मेटावर्स पे प्लॉट ले ले। फाइलें। Acha, so now, okay, again, from a student's perspective, if I am a student, I've just graduated, let's say मैंने सिर्फ bachelor's किया है, I've done it in marketing and मैंने कुछ courses advertising में ले लिए। Now मेरे लिए ये किसी भी student के लिए क्या entry level roles available हैं in the any advertising agency, because मेरा passion है, मैं ads पसंद करता हूँ। मुझे जब मैं ads को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें ये बेहतरी, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। हम हर बंदा तबसरा कर रहा होता है कि ये ऐड में ये चीज बेहतर हो जानी चाहिए थी, या ये चीज अच्छी नहीं लगी हमें, यू नो। व्हाट आर द रोल्स अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट हु इज फ्रेश आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी? ओके, सो यहाँ पे मैं, क्योंकि आई वांट दीज किड्स टू सक्सीड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, तो मैं ये उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि दे नीड टू हैव एडिशनल स्किल्स। क्योंकि अगर तो सिर्फ अपनी अंडरग्रेड की फॉर एग्जांपल डिग्री पे, मार्केटिंग की डिग्री है, आप आ जाएंगे किसी एड एजेंसी में, आपको हो जाएगी, मिल जाएगी जॉब, ए वो शायद आप उससे बेहतर चीज ले सकते हैं अगर आपके पास सेकेंडरी स्किल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर अ स्टार्टर, फॉर एनी एजेंसी, स्पेशली अगर वो डिजाइनर नहीं है, डिजाइनर इज अ हार्ड स्किल। याद रखें, मार्केटिंग इज नॉट अ हार्ड स्किल। So आप first you would say कि designer is can be hired easily in an organization. Like if you're a graphic designer, you don't know anything, so you're an artist like a graphic designer. मैं यही अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि सी दे आर हार्ड स्किल्स एंड देर आर सॉफ्ट स्किल्स। मार्केटिंग इज अ सॉफ्ट स्किल। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग ग्रेड हैं और आप कहते हैं जी मैं मार्केटिंग ग्रेड हूं, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। अब कंपनीज इतनी होशियार हो गई हैं और इतना ज्यादा वो लोग भी अब एवरीबडी इज कटिंग डाउन पीपल, एक बंदे से दो लोगों के काम एंड एफिशिएंसीज। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि लोग जिस तरह के ये हम लोग रखें, तो वो पोजीशंस ऐसी तो इनको मिलें कि ये लोग वहां पे आगे करियर में चलें। अब मैं एग्जांपल अगर दूं, अंडर ग्रेड करके ये आएंगे तो ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव लग जाएंगे, अकाउंट मैनेजर के नीचे। ये कहीं मीडिया प्लानर लग जाएंगे, ये कहीं मैनेजमेंट ट्रेनी लग जाएंगे। और 5 साल बाद ये अगर रह भी जाए वहां पे और ये अच्छा परफॉर्म भी कर जाएं, तो ये जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव था ये अकाउंट मैनेजर, सीनियर अकाउंट मैनेजर बन जाएगा। जो कॉपी राइटर, नहीं कॉपी राइटर तो नहीं बन सकते ज़ाहिर है, जो अगर एमटीओ था वो अकाउंट मैनेजर बन जाएगा। लेकिन 5 साल बाद अगर कोई बेसिक डिजाइनर लेवल का लड़का आया है लेकिन होशियार है, 5 साल बाद वो आर्ट डायरेक्टर हो। और ये शायद 50,000 से या 40,000 से लाख रुपए पे पहुंचे होंगे, वो 40,000 से 2 लाख 3 लाख पे पहुंच गया होगा। सो मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, जाहिर है आई एम अ मार्केटिंग ग्रेड और मार्केटिंग मेजर होता है। हाउएवर, एज वी वर अर्लियर डिस्कसिंग ऑफलाइन, कि मार्केटिंग मेजर्स बहुत ज्यादा भी है ना। वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर के जो भी कहीं टेक्निकल साइड पे नहीं है, इजिएस्ट गेट अवे लोगों के लिए है मार्केटिंग मेजर। सो दैट्स नॉट इनफ फॉर यू कि आप सिर्फ उस एजुकेशन की बेसिस से समझें कि आप कहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। अब वो मेरी तरह का जमाना भी नहीं रह गया कि लोग इस प्रोफाइल के डिग्रीज के नहीं आते थे। अब तो भरे हुए हैं। अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग, मैं बता रहा हूँ, कोई कार्डिफ का बच्चा, कोई कॉर्नवेल का बच्चा, मैं इंटरव्यूज ले रहा होता था। सो सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, आपने किया है मार्केटिंग या कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करें। अंडरग्रेड तो जरूरी है, साथ कोई एनिमेशन कोर्स कर लें, कोई वीडियो एडिटिंग कोर्स कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कर लें। देयर देयर फ्यू सॉफ्टवेयर जिन पे अगर कोई साथ साथ काम करना चाहे, अपने शौक से सीखता रहे, तो वो आगे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रिसोर्स बन सकते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि एजेंसी में अगेन, मार्केटिंग वाला एजेंसी में लिटरली अकाउंट मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम स्ट्रैटेजी के दो वर्टिकल्स में फिट होगा। बट जो तीन हमारी और टीम्स हैं उनके अंदर मार्केटिंग वाला मिसफिट है। ना वो क्रिएटिव मैनेजर, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकता है, ना वो डिजाइन डायरेक्टर या डिजाइन या आर्ट डायरेक्टर बन सकता है, और ना वो फॉर दैट मैटर स्पेशलाइज्ड डिजिटल मीडिया बन सकता है। तीनों, क्योंकि वो भी स्पेशलाइज्ड चीज है या हार्ड स्किल है।
So my message to these guys is कि try to get more skills. जितना ज्यादा अपने आप को, भी यंग है, इन चीजें सीख लें, अपना कितना आप काम निकाल सकते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पढ़ाई के साथ पकड़ सकते हैं। आई नो किड्स जो के साथ साथ काम कर रहे हैं। एक बच्चे को तो अभी दी अदर डे मुझे पता चला, क्लास 9th या 10th का बच्चा है, और वो एक जो मेरा एक्स क्लाइंट था, जो मुझे 2 लाख रिटेनर महीने का देता था, उसको वो 30-40 हज़ार रुपए दे रहा है। वही वो काम बच्चा लिटरली करके दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ क्वालिटी ऑफ डिजाइन का फर्क होगा, और वो उसकी पेजेस भी मैनेज कर रहा है, सब कंटेंट भी बना रहा है, पोस्ट भी कर रहा है, और उसको साथ साथ स्टाइपेंड मिल रही है। सो दिस इज, इस तरह के लोगों की जीत है फ्रैंकली फ्यूचर में। अब वो जमाना खत्म हो गया, टू मच सैचुरेशन, यू कैन नॉट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम, यू हैव टू मेक योर वे, आई तो वुड से। बेसिकली वेबसाइट डिजाइनर्स हो, वीडियो एडिटर्स हो, ग्राफिक डिजाइनर्स हो, एब्सोल्युटली, वेबसाइट डिजाइनर्स आर हाई डिमांड। एआई स्पेशलिस्ट प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट्स लिख पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एआई के जो भी जितने भी अभी टूल्स अवेलेबल हैं, हंड्रेड्स ऑफ टूल्स आर नाउ अवेलेबल, उनको उनसे इंफॉर्मेशन निकालना भी तो एक आर्ट है, राइट? कि उन पे बिल्कुल। क्या प्रॉम्प्ट्स आपने करने हैं। सो आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन कि अब चोई इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग में ये ज्यादा अप्लाई होता है, और दूसरे इंडस्ट्रीज में भी। हाँ, डिग्री विल गेट यू इनटू ए रोल जस्ट टू एंटर यू इंटर स्टार्टिंग रोल, या लार्ज टू एजेंसी, गेट दैट इंटरव्यू लाइक, कॉल। करेक्ट करेक्ट। सो देन आई वुड से कि एक तो आपकी फील्ड आ गई कि आपने डायरेक्ट एजेंसी ज्वाइन करनी जिनको कॉर्पोरेट्स हायर करती हैं, और दूसरा है पाकिस्तान की तमाम कॉर्पोरेट कंपनीज, चाहे वो छोटी कंपनी हो जिसमें एक मार्केटिंग का बंदा हो या एडवर्टाइजिंग का हो, या ऐसी कंपनी हो जहां पर 10 हो या 100 हो। एक तो वो आपकी मार्केट है, ऑफ कोर्स मार्केट इज ह्यूज फॉर अ फील्ड लाइक एडवर्टाइजिंग as compared to a field like chartered accountancy, or so, and then you can directly join an agency, or आई थिंक अब बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने स्टार्टअप कल्चर का भी जिक्र किया था, तो एंटरप्रेन्योर बन जाएं कि मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो अब आज के जमाने में ज़बान आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कि निकलते ही कॉर्पोरेट्स में अप्लाई करना शुरू कर दें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, या फिर अपना फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर दें, या फिर मिक्स करें? आई वुड से द वे फॉरवर्ड तो यही है कि सबको अपना काम करना चाहिए। आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ दिस। लेकिन हर चीज का एक टाइम है। नाउ मेरे पास वो भी एग्जांपल्स हैं। आई हैव मेट किड्स हु वर वेरी ब्राइट, मेरे साथ इंटर्नशिप्स की हुई हैं मेरी एजेंसीज में उन्होंने, और 1 साल बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि बॉस क्या हाल है, हमने अपनी एजेंसी शुरू कर दी है। तो दैट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग, नॉट टू डिस्करेज देम, लेकिन एक अभी खुद सीख रहा है, गेटिंग द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। देयर इज नो वन, कुछ घूंट पी के आप नहीं सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें तो आप जब व्हेन यू बैटल हार्डन, व्हेन यू फेस दो सिचुएशंस, और अपनी एजेंसी, और फिर क्या इसका एक फॉल बैक क्या है, वो इसमें मुझे खुद ही कहा कि मेरे पास 3 क्लाइंट आ गए हैं, कोई 10,000 रुपए दे रहा है, कोई 20,000, कोई 30,000। अब तुम मुझे बताओ कि वो उसकी 60 पोस्टर निकालता है महीने की, 20-20 पर क्लाइंट, साथ हाँ। उसने एक लड़का रखा हुआ है। मैंने कहा तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, तुम तो खुद नहीं उस 1 रुपया कमा सकते, तुम दूसरे को कैसे दोगे? सो ये तो लॉस का सौदा है ना। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, आप ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 3 to 5 years, अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है, आगे डिजिटली करना है, बिल्कुल करें, ह्यूज पोटेंशियल। लेकिन आप किसी अच्छी एजेंसी की कोशिश करें, वहां पे जाके एटलीस्ट सीखें तो देखें लोग कैसे काम करें, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री कैसे काम करती है। एक और, क्योंकि अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, खुद से एजेंसी खोल ली, तो तुम तो अपने शहर में बैठे हुए हो कि भाई अब ये ऐसे ही होता है, यू डोंट इवन नो इफ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो दैट इज सुसाइडल। कोई अगर आपके पास ढंग का क्लाइंट आ गया जिसको काम आता है, तो वो तो आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हम्म। सो अब एक्सपीरियंस भी जरूरी है, बट एज सून एज यू फील कि यस आई एम इक्विप्ड, आई एम इवन 50% 70% देयर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप बिल्कुल अपना सेटअप बनाएं। लेकिन सेटअप याद रखें कि 10 में से 9 स्टार्टर्स बंद हो जाते हैं, ये रेशियो है। Yeah. इंटरनेशनली भी है, लोकली तो शायद ज्यादा ही होंगे। तो थिंक बिफोर यू टेक दीज एक्शंस, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर इफ यू हैव टाइम एंड मनी टू वेस्ट, रिस्क लेना है, श्योर ले लें। लेकिन फॉर समबडी हु सेल्फ मेड, हु वो अपने अपना पाथ खुद लिख रहा है, तो उसको जरा चीजें सोच के डिसीजंस लेने चाहिए। Excellent. So, okay, now coming back a bit towards your expertise, can you talk about and share an example of a successful ad campaign which you had done and what made it actually work?
अच्छा, so I will like to quote one example. वैसे तो I've looked after many brands and many clients, लेकिन ये क्योंकि this had kind of a impact, social impact. So I'm sure you must have heard Nestle has a brand called Nestle Bunyad. Yeah. So Nestle Bunyad is a uh, lower priced versus Nido, lower priced पाउडर मिल्क, और उसका प्रॉमिस ये है कि इट गिव्स आयरन फोर्टिफिकेशन. सो इसमें जो प्रॉब्लम एनालिसिस था वो ये था कि one of three children in Pakistan is iron deficient. This is a huge claim, not only a claim, it's a very shocking number. So Nestle Bunyad took upon itself because it has extra iron fortification. So as an agency, we had the challenge that not only we have to result in brand growth and brand sales, but create a hook where we can create a social impact. क्योंकि वो अर्न मीडिया, पेड मीडिया, ये अलग अलग चीजें हैं ना. पेड तो आप जेब से दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहीं सोशली कुछ कर लिया तो उसका जो आपको रिजल्ट आना है वो अर्न मीडिया होता है. तो इट डिड नॉट, एक कैंपेन से नहीं हुआ. इट टुक लाइक 2 3 4 years, बट इवेंचुअली शहजाद रॉय बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर. हर साल ये लोग अपना एक बड़ा हाईली इमोशनल टीवीसी भी निकालते थे. हाउ एवर, बाय द एंड ऑफ 4th 5th year इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वो नीडो को खाना शुरू हो गया. सो वो भी एक कैनिबलाइजेशन हो गई. बट आई थिंक फ्रॉम इससे हम लोग, हमें ये जिस्ट मिलती है कि brands should need to talk more and do more than just sell a product. They need to create value. They need to show how they're enriching the lives of the consumers. They need to show impact. They have to change something in the consumer's life. वरना उसके पास 10,000 ऑप्शंस हैं मार्केट में, वो क्यों लेगा नेस्ले बुनियाद. तो इसमें ये था कि यस, ये डबल एज था ना हमारे लिए. विक्ट्री ये थी कि ऑल्सो एक नंबर्स छतें फाड़ के निकल गए, बहुत सेलिंग हुई. तो ब्रांड ग्रोथ तो अपनी जगह हुई, बट सोशली इट बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड. इट बिकेम अ ब्रांड विच इज फाइटिंग फॉर आयरन डेफिशिएंसी इन पाकिस्तान. सो आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग So the कैंपेन. cause, you're saying the cause and purpose is most important. वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी कोविड Uh, की लर्निंग है कि कोविड hmm. में जो ब्रांड्स ने बात करना शुरू की सोशल. कोक ने अपना पूरे एक साल का मार्केटिंग बजट कोविड रिलीफ में डाल दिया था. वो साल उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा था. तो अगेन ये दीज आर गिमिक्स. गिमिक्स ही कह सकते हैं, सारे गिमिक्स ही हैं, लेकिन जरूरी है. द ब्रांड हैज टू रेजोनेट विद द कंज्यूमर. रेजोनेट तभी होगा जब उसकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहा है. सिर्फ इसलिए Right. कि वो ब्रांड रिच लोग लेते हैं जरूरी नहीं है मैं ले लूं, या वो ब्रांड सक्सेसफुल लोगों के पास है तो मैं ले लूं. अब वो जमाना खत्म हो गया. पहले बहुत इस तरह होता था. The brands have to So, stand for something. The brand has to promise yes. something. That's And important. then that the agency or the account manager needs to well understand rather than jumping directly into creating a, like a designing, like a poster, creating a ad. He or she has to first understand the brand, what the brand stands for, what are the brand objectives, and what does the customer want. Because of course ऐसा होता होगा कई बार कि कंपनी को तो मालूम है कि वो क्या बेच रहे हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि कंज्यूमर्स को चाहिए क्या. चाहते हैं क्या है वो. मेज से बैठे कह रहे हैं कि यार ये कर दो, ये वहां पे ये कर दो, वहां पे उसको ये चाहिए होगा तो ये चला दो. ऐसे तो नहीं होता. और यहीं पे वो फिर वो जो स्टेप्स मैंने बताए थे, रिसर्च इनसाइट्स इतना इंपॉर्टेंट है. वो दैट विल लीड टू द स्ट्रैटेजी एंड देन कैंपेन या लॉन्च या क्रिएटिव की तरफ आना चाहिए. बिल्कुल क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं या वो 2 ऐड बना के भेज दो या कियोस्क का डिजाइन दे दो. मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं दूंगा. जब एक 1 पेजर नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट मुझे वर्बल ब्रीफ दो. फिर हम खुद लिख लेते हैं वो चीज, लेकिन वो ब्रीफ बहुत राइट. जरूरी है स्टार्टिंग पॉइंट. वरना राइट. वरना टू मच एफर्ट इज लॉस्ट एंड इट्स अ यूजलेस एफर्ट, Right. So I think the नॉन प्रोडक्टिव. client and the agency relationship has to go beyond just, कि sales numbers हैं, but it has to become like a one company working, because otherwise तो खुद के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही काम कर ले, एडवर्टाइज एजेंसी की जरूरत ही ना पड़े. सो द कॉन्सेप्ट तो एजेंसी का यही है. एज एज जब हम लोगों को ठंडा करना होता है, बहुत जुल्म कर देते हैं एजेंसी पे, तो क्लाइंट कहते हैं नहीं नहीं तुम लोग तो हमारी टीम हो, यू आर आर एक्सटेंडेड मार्केटिंग टीम. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह इतना ज्यादा है. देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ clients like this who still treat agency at the same level, respect them. मेरा एक client होता था सिल्क बैंक. जब वो सऊदी पाक से सिल्क बैंक बना तो I led that transformation. I was the account head for सिल्क बैंक.
और वो अजमत तरीन साहब प्रेसिडेंट होते थे, एंड गौहर साहब हमारे वो होते थे। तो वहां हम जब जाते थे, सिल बैंक वही उनकी जो आइकॉनिक बिल्डिंग थी टावर वाली, तो हमारे लिए लिटरली एजेंसी की गाड़ी के लिए वो सीईओ के साथ वाली स्पेस रखते थे, इतनी इज्जत। तो वो तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन 90-95% आर नॉट लाइक दैट। एंड वो जो एक रिलेशनशिप है, इट्स मोर ऑफ अ कैट एंड माउस वाली। एजेंसी इज जेरी, बट अनफॉर्चुनेटली हम नॉटी नहीं हो सकते जेरी की तरह, लेकिन वो टॉम ही है क्लाइंट ना। एंड देर ऑलवेज ऑन आवर टेल एंड पुशिंग फॉर मोर। इट्स गुड कि क्लाइंट शुड पुश। लेकिन एक और मैं चीज यहाँ पे बता दूं, अच्छी कैंपेन, बुरी कैंपेन, दोनों किस्म की कैंपेन्स निकलती हैं, लेकिन क्लाइंट सिर्फ अच्छी कैंपेन ओन करता है, जो कि एक बड़ा अलमिया है हमारे इंडस्ट्री में। हम्म। बुरी कैंपेन जब निकलती है तो उसमें ज्यादा क्लाइंट का हाथ होता है। ये मैं बता दूं, क्योंकि हम तो क्रिएटिव थे। अगर वो चीज सही नहीं निकली, इफेक्टिव नहीं थी, क्रिएटिव नहीं थी, तो अगर खराब किया वो क्लाइंट ने किया। और क्लाइंट के तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है फॉर गुड क्रिएटिविटी। एंड ऑल्सो क्रिएटिविटी, मैं कोई मोजार्ट की चीज बना के दे दूं, इज नॉट नेसेसरली क्रिएटिविटी। डेविड ओगिलवी कहता था, इट सेल्स और एल्स। या एक और कोट था कि इफ इट डजंट सेल इट इज इन क्रिएटिव। तो यहाँ पे बड़ा डायरेक्ट लिंक है एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से। वो चीज बिक रही है, और बेशक सिंपल क्रिएटिव है, स्टिल इट इज क्रिएटिव देन। और जितनी भी हाई हाई लेवल क्रिएटिविटी आप ले आए, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं बिक सकी, तो व्हाट गुड वाज दैट क्रिएटिविटी? तो क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिवनेस हैव टू बी पुट टुगेदर। ये हम यहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं बना रहे, कोई कैनवस नहीं है। इट हैज टू बी समथिंग व्हिच रिजल्ट्स डायरेक्टली इन ऑफ टेक ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो राइट, राइट। ये जरूरी है। So, coming to towards the end of this webinar, I think हम बात कर सकते हैं ethical considerations और regulations की। I know कि कोई strong, and tell me, correct me if I'm wrong, कि strong regulations नहीं होंगी industry में, like other industries like the banking industry or the accountancy industry. But what kind of ethical considerations should the advertising person who's dealing with a corporate client should have, and then how you take care of the regulations around? अच्छा, ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं एथिक्स की, तो इंडस्ट्री के एथिक्स यस कॉम्प्रोमाइज जरूर है। और कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है। हाँ, सो कॉल्ड एक वो बोर्ड है जो कि डिसेप्टिव मार्केटिंग का एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, एंड एवरी नाउ एंड देन किसी ना किसी कंपनी को एक फाइन हो जाता है डिसेप्टिव मार्केटिंग पे। लेकिन वो हो जाए मुकाबला एरियल, इस तरह के एड्स अब हमारे कपड़ों पे गिरता है, कभी वैसा साफ नहीं होता जैसा वो एड में दिखाते हैं, चमकता हुआ कपड़ा आफ्टर दैट धुलाई। सो ये तो अपनी जगह, एडवर्टाइजिंग में हमेशा एग्जैजरेशन तो अपनी जगह होती है, लेकिन वो कहाँ डिसेप्टिव मार्केटिंग पे ट्वीट हो जाए, ये क्लाइंट अक्सर मिस कर जाते हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई है इंडस्ट्री, जैसे मैंने देखी है, न्यूट्रिशन इज वन इंडस्ट्री, बहुत बहुत ज्यादा रेगुलेशन है वहाँ पे। या नेस्ले का भी जो न्यूट्रिशन बिजनेस था, तो नेस्ले ग्लोबल की बहुत ज्यादा होती थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस। तो जाहिर है अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं इस तरह की, तो उसको हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। और ये मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनी जो कि सो कॉल्ड सोशली कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो तो इसको फिर भी कर लेती हैं, लेकिन लोकल क्लाइंट्स बहुत दफा ऐसी चीजों को नोइंगली भी जाने देते हैं। दे रियली डू नॉट होल्ड एथिक्स एज high as it should be in the consideration. Hmm. So you think ethical advertising कभी जिंदा है in the digital marketing side? Can you repeat that? Your voice was breaking. लेकिन I said इसका मतलब ये हुआ कि आपके ख्याल के मुताबिक ethical advertising, ethical media भी जिंदा है? जिंदा है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इट इज वेरी वेरी subliminal. Hmm. There is concept of it, but it's not really followed, other than And medical there's and no norm now. There's no norm now. There is no यानी पुराने जमाने में जो एक स्ट्रक्चर होता था in terms of your advertising campaigns, वो अब नहीं होती. नहीं होता है। इनफैक्ट ये एथिक्स से तो मुझे याद आया, द लास्ट 2-3 years आई हैव हर्ड सच बिग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो कि एम्प्लॉइज ने किए हैं इन सच ह्यूज मल्टीनेशनल्स कि यू विल नॉट बिलीव इट, बट समहाउ पीपल गेट स्कॉट फ्री। देयर वाज नो लिटिगेशन इवन। एवरी द वर्ल्ड नोज कि फलाने ने वहां मैल प्रैक्टिसेस की, फलाने, और उसके बाद उनको जॉब भी मिल जाती है। सो हमारे यहाँ तो इतनी
जब ब्लाइंड होना चाहे कोई तो इतना भी ब्लाइंड हो सकता है, right? कि Internationally, I think how would Pakistan, of course, marketing spend जितना हमारा जीडीपी है उसके लिहाज से, या जितने लोग हैं पीकेआर में स्पेंड होता है, पर इंटरनेशनली अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो अब जाहिर सी बात है हर चीज आपके हाथ में है। दिन में एक बंदा जब टीवी देखता था 1 घंटा, तब वो 1 घंटे में ऐड जितनी देख ले, या फिर एक क्रिकेट मैच अगर देख रहा है या कोई ड्रामा देख रहा है तो वो देख ले। लेकिन आज तो पूरा दिन सोशल मीडिया पे, इवन अगर आप 10 वीडियोस देख रहे हैं तो 10 एड्स भी देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज इट गोइंग, वेयर इज आवर कंज्यूमर्स माइंड गोइंग, व्हाट इज ही लाइकिंग, व्हाट ही, एंड दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन। अ, अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा, बिल्कुल यू आर राइट। अब तो इट बिकम्स पेनफुल एंड बिकम्स इरिटेटिंग कि गलती से एक जूता ऑर्डर कर दिया, अब हर पोस्ट के बाद एक जूते की कंपनी का ऐड आ रहा है। आई थिंक लेकिन वो अपनी जगह रहेगा। यस, एवरी 3 4 5 years कोई नया फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग बैनर तरीका भी आ जाता है, लेकिन ये तो अभी चेंज नहीं होगा अपनी जगह। अब उसमें मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, जब फॉर एग्जांपल यूट्यूब वाले हैं, तो यूट्यूब पे वो 3 4 सौ की सब्सक्रिप्शन है, वो ले लें इफ यू डोंट वांट टू सी दी एड्स। वरना तो यूट्यूब ने अपना ऐसा एल्गोरिदम बना दिया, इफ यू आर वाचिंग यूट्यूब, पहले वो देगा 5 सेकंड, फिर वो आधे घंटे 15 मिनट बाद देगा 15 सेकंड, वो होते होते 1 1 मिनट पे ले जाएगा। तो वो ये आप कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट स्किप इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये तो ब्रांड्स विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, कंज्यूमर को वो कंटिन्यूअसली हाउंड करेंगे, बराज करेंगे विद एड्स। इसलिए तो क्लटर भी बहुत है, और इसीलिए उसके अंदर कोई मेमोरेबल कम्युनिकेशन बड़ी कम नजर आती है। लेकिन वंस एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई नजर भी आ जाती है। सो ये अगर कोई अच्छी कैंपेन 10 में नजर आ जाती है तो उसके पीछे ज्यादा थॉट क्या था, उसके पीछे वो प्रोसेस फॉलो हुआ था, एंड उसके पीछे गुड माइंड्स लगी थी। सो वो खुद कैंपेन में समझ आ जाता है आपको जब नजर आती है ना ऐसी कोई कैंपेन। All right, so I think let's summarize the whole session. We spoke about, how to get into how to get into an agency, what are the brands looking for, what roles do you have, what are the media vehicles available. एक सवाल मेरे पास आया है, I'd like to take it from the chat. There's this person who says, I'm from Ikra University, majoring in advertising. There's a stigma revolving around Ikra University. Does big brands hire from this university? And I want to apply for internship. It's my fourth semester, and for the hard skills, I am confused between UI UX designing, or web designing, or graphic designing. And do I have to work on any portfolio to get into an internship or a new job? अच्छा, 2 3 सवाल हो गए इसको। अगर आउट ऑफ द टू आई इकरा वुड यूनिवर्सिटी सजेस्ट, के हवाले से पहले बात करते हैं। उस पे एंड में आ जाते अच्छा। हैं। आई थिंक वेब डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स इज अ मच मोर इन डिमांड स्किल। ग्राफिक डिजाइनर्स आर डाइम अ डजन स्टिल। और उसमें भी मसला ये नहीं है कि वो ग्राफिक डिजाइनर्स का मसला है, लेकिन उसमें भी क्वालिटी का इशू है। सो किसी भी चीज़ में जहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं वो सैचुरेट एम की हो जाती है। बट यूआई यूएक्स भी अच्छे लोग हैं लेकिन कम है वर्सेस ग्राफिक डिजाइन तो पिछले 50 साल से हम ग्राफिक डिजाइनर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइनर्स। हम्म। सो दैट्स अ न्यू थिंग। उसमें आप कोई ये फाइवर अपवर्क टाइप के ये जगहें हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स काम भी पकड़ रहे हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स 4 5 हज़ार डॉलर्स तक का काम पकड़ चुके हैं। सो अगेन वो प्राइसिंग बेस्ड चीज होती है, लेकिन यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। इनका लास्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? So, saying I'm in the fourth semester, and हाँ, वो जो उन्होंने I'm और पोर्टफोलियो की बात की थी। पोर्टफोलियो, हाँ पोर्टफोलियो हम मैं कैसे ओके, सो पोर्टफोलियो अभी तो जाहिर है कोई एज सच पोर्टफोलियो तो वंस यू हैव अ स्किल एंड यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स इवन इफ इट इज फॉर योर ओन, तो तब जाके आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू होता है। अभी तो ये है कि स्किल लेना जरूरी है। इंटर्नशिप में कोई पोर्टफोलियो प्रूव नहीं करना होता, वो जॉब के लिए करना होता है। तो तो इंटर्नशिप में जॉब तो के इफ यू, लिए, इफ यू वांट टू गेट इंटर्नशिप अ में तो यू जॉब, कैन जस्ट शो के आई एम डूइंग दिस एंड आई एम विलिंग टू कम एंड हेल्प विद द यूआई यूएक्स पार्ट। आई एम श्योर कोई भी एजेंसी इंटर्नशिप को तो दे देगी। जॉब के लिए लेकिन आपको दिखाना है कि मैंने ये 5 वेबसाइट 10 वेबसाइट्स का यूआई बनाया था या यूएक्स बनाया था, या किसी ऐप पे काम किया था, या जो भी। और इकरा का जहां तक मेरा ख्याल है तो यार द पास्ट फ्यू मंथ्स में ये सुनता जा रहा हूँ इकरा पे सडनली एकदम से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, जबकि फॉर मेनी मेनी इयर्स आई थिंक डेकेड से है वहाँ पे। तो इट वाज द यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से तो वो और सीबीएम, हम लोग बैक इन द डे कहते थे, आईयूबीएम हो गई है वो बाद में। मेरे हिसाब से तो ये पैरेलल यूनिवर्सिटीज थी।
लेकिन अभी भी आई डोंट थिंक के इन द एडवर्टाइजिंग सेक्टर कोई इशू होगा। एडवर्टाइजिंग में लाइक आई सेड कि द नेम ऑफ द कॉलेज इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द पर्सन सिटिंग एंड सेलिंग देम, बिकॉज ये है ही कम्युनिकेशन की गेम। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू अ गुड इंटरव्यू, मैंने बता रहा हूँ, मैंने फॉरेन ग्रेड्स को नहीं लिया, लोकल किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा उठा लिया जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के भी नहीं थे, लेकिन इसलिए बिकॉज दे केम अक्रॉस एज शार्प ब्राइट, दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस। वो विलिंगनेस बहुत जरूरी है, वो हंगर नजर आना बहुत जरूरी है कि यू वांट टू डू समथिंग। करेक्ट। बहुत पेट सो आई थिंक बोझ ना आ पाए तो पीपल डोंट रियली अप्रिशिएट। यूआई यूएक्स की हमने बात की, तो मैं थोड़ा सा बाकी लोगों को बताना चलूं कि इट्स नॉट प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग, इट्स अ पार्ट वेर यू से यूआई मींस यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स मींस द यूजर एक्सपीरियंस, जिसको कस्टमर एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, कस्टमर जर्नीज। सो इफ यू लाइक दैट, बिकॉज हम पूरा दिन मोबाइल एप्लीकेशंस पर ही रहते हैं, राइट? चाहे हम मेटा को ब्राउज कर रहे हो, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो, या फेसबुक, इंस्टाग्राम को, जब हमें एक कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है किसी दराज.com पे फॉर एग्जांपल, तो हम क्या यूजर जर्नी फॉलो करते हैं? उसके सारे डिजाइन्स बनाना और उसका कस्टमर जर्नी बनाने को यूआई यूएक्स कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हॉट एंड इंपॉर्टेंट फील्ड ऑल्सो फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट हो रही हैं, जहां बन रही है। सो इट्स नॉट directly related with advertising, but a corporate may ask an advertising agency to help them create UI UX for them. But I think यहाँ this पे is a इफ आई कैन ऐड इमरान, सो अब ना, यस आई नो व्हाट यू मीन कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर एड एजेंसी ऑफरिंग्स जो होती थी या सर्विसेज जो होती थी, लेकिन नाउ जब से मैंने स्टार्टअप्स रखे हैं तो मेरे हर एजेंसी में हम यूआई यूएक्स कर रहे हैं। सो दैट इज hmm, बिकॉज क्रिएटिव एंड टेक आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर आता जा रहा है। पहले देयर वर माइल्स अपार्ट। तो और ये एक बॉर्डर लाइन है कि ये टेक साइड पे भी कह सकते हैं और ये डिजाइन भी है। और hmm. मैं आई पर्सनली हैव लाइक वी हैव डेवलप्ड 8 to 10 वेबसाइट्स इन द पास्ट 2 years। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, अभी भी हमारे क्लाइंट की ऑलमोस्ट रेडी पड़ी हुई है। Absolutely. Yes, yes, yes. सो Web इट्स अ हार्ड designing या स्किल, मोबाइल डेफिनेटली ये आपको एडवर्टाइजिंग में हेल्प करेगा, या एजेंसी साइड पे फिर भी हेल्प करेगा। एजेंसी साइड पे, यानी कि आज भी कॉर्पोरेट्स एजेंसीज को कह रही होती है कि हमारी वेबसाइट डिजाइन करके दो या उनको बेहतर करके। एब्सोल्युटली। करेक्ट। अच्छा, एक जो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सबको हेल्प करेगा यूनिवर्सिटीज के हवाले से। आई थिंक दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन इज, ही और शी इज मोर वरीड अबाउट के मेरी यूनिवर्सिटी का अगर नाम नहीं है, ये नाम अल्लाह ना करे बुरा है मार्केट में, और बहुत सारी जो टॉप कंपनीज है, ये सच है कि वो स्टार्ट करती हैं कि भाई हमें इंटर्नशिप्स अगर लेनी है, इंटर्नीज, या हमें जॉब के लिए लोग लेने हैं, हायरिंग करनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे लम्स से, फिर हम आईबीए पे आएंगे, उसके बाद जेवेस्ट है, आईओबीएम है, और एक दो और यूनिवर्सिटीज है। ये बात सच है कि इन ही यूनिवर्सिटीज से, जो मैंने आपको 5 नाम लिए, इन ही यूनिवर्सिटी से तकरीबन मोर देन, लेट्स से, 3-4 हजार बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है हर साल। तो आप सोचिए एब्सोल्युटली। कि इतनी हाई लेवल जॉब्स हैं मार्केट में या नहीं है। अगेन इट विल बी योर थिंग, अगर इकरा का नाम नहीं था तो आप लोगों को इतने वरिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं होता। इसी तरह से हर बच्चा हर यूनिवर्सिटी में सेम नहीं होता, कुछ टॉप लेवल स्टूडेंट्स होते हैं। you always have to strive to be the best in any organization or any university, and you will strive। जॉब मिलना या ना मिलना आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे, आपके अपने कॉन्फिडेंस पे, हाउ मच डू यू अप्लाई, हाउ मेनी पीपल डू यू नो, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। सो आई थिंक दिस इज अनदर, आई वुड से, फील्ड इन इटसेल्फ, टॉपिक की हम बात कर सकते हैं। मैं इसको एज अ फीडबैक नोट कर लेता हूँ। इंशाल्लाह हम इस पे भी जरूर एक नया वेबिनार करेंगे in terms of the best universities or the best jobs available in the market. At this moment, thank you very, very much, Ziban. I think we exceeded our 75 minutes, but I think it was a very good chat, very Pleasure is good all mine. I conversation. hope I was able to give some insights which are valuable to these guys. Most Thank you certainly. for the patience of everybody. It And was thank you, really, really Imran, good. for having me. Thank you And so much. Thank take you care. so much. Take care, Ji. Allah Hafiz, Okay. everybody. And Allah I'm just Hafiz. going to end this call. Take care, Ji. Allah Hafiz. Allah Bye. Hafiz.